सोहेले राखो रखनहार दयाला। नानक घर के गोले राखो रखनहार दयाला। नानक घर के गोले बदबख्त हम चूं बखील गाफल। बेनजर बेबाक नानक भुगोयद जन तुरा। तेरे चाकरा पाख नानक भुगोयद जन तुरा। तेरे चाकरा पाख। साहिब सतगुरु बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज गुरुदेव दे मुबारक चरण छो प्राप्त मुकद्दस स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल शब्द गुरु कलयुग दे तारनहार गुणा दे भंडार सारी मानवता नू प्यार दा एकता दा संदेश दृढ़ाउण वाले सच्चे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी दी पवित्र हजूरी विच सजे हुए दीवान विच हाजरियां भरदियां जुड़ बैठे सत्संगी जनों। मालिक दा तरस होया जो गुरु साहिब जी दी गोद विच जुड़न दा सुभाग समा मिलिया। रब्बी बाणी दा फैसला है पातशाह दे वचन हन कि जाके मस्तक करम प्रभ पाए। साध शरण नानक ते आए। जिन्हां उते अकाल पुरख जी ने आप तरस कीता है वो सत्संगत रूप में जुड़ते हैं। आप जियां ने जुड़ बैठ के दरगाही उपदेश जिसनों आपां गुरबाणी गुरशबद गुरु का उत्तम सिद्धांत कह के जपदे हैं। भाव अमृत बाणी का नितनेम उपरंत रागी सिंघा पासों आसा की वार दा कीर्तन शब्द कीर्तन सरवण कीता है। सो मालिक जी दी मर्यादा जो गुरु घर विच जिवें सुनना ते मनन दी गल है ते सुनन तो बाद समझना है विचारना है। विचार अधीन अज दा अमृत वाक गौड़ी राग विच है। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी दे उच्चारण कीते बचन तिन्हां दा मूल पाठ गुरु के वजीर साहब पासों बड़े प्यार नाल श्रवण कीता है। आओ सतगुरु महाराज अज की प्रेरणा दे रहे ने कि अज साडे वास्ते गुरु का हुक्म है। किवें सतगुरु जीवन सवारन दी मर्यादा समझा रहे ने। गुरु के अमृत बचना नाल जुड़ना करिए जी। विचार दी सांझ तो पहलों मनोबिरतियां एकागर करदियां लगाओ हाजरी। फतेह दी प्रवानगी बख्शो कोई रसना वांझी ना रवे। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन गौड़ी बैरागण महला तीजा। राग गौड़ी है नाल रागणी बैरागण शामिल है क्योंकि अलग अलग किस्मां ने गौड़ी चेती गौड़ी बैरागण दखनी किस्म दी भी है। ये अलग अलग सरलेख विच हवाले दिते ने
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਟੇਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਪਿਰ ਵਸੈ, ਕਉ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ। ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ, ਪਈਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਕਾ ਘਰ। ਸਸੁਰੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਰਾ ਘਰ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਪਿਰ ਵਸੈ। ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਰ, ਉਹ ਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਲੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਬਣਤੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਆ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸਾ। ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ, 40 ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੀ, 40 ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, 40 ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, 40 ਪੂਰਨਮਾਸੀਆਂ ਨਾ ਲੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ 1 ਦਿਨ, ਅੱਜ 4 ਦਿਨ, ਅੱਜ 10 ਦਿਨ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਚਲੀਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਤੇ ਜਸੋਖਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਨਮਤ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹੋ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨੇ ਧਾਗਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜ਼ੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰ ਹੈ, ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਘਰ ਨਾਮ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਲੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਈ ਮੌਜੂਦ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਵੀ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਗਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੇ ਲਾਈਐ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਿਰ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਲਖ ਹੈ। ਉਹ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭੂਪ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਆ ਫੁੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਭੂਪ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਸ਼ਪ। ਭੂਪ ਮਦ, ਮਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਸੂੰਘਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ।
सुगंधी है पर देख नहीं सकते असी, वो विशा होर तरीके का है। ते गुरुदेव ने कह दिता तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। कहते वाहिगुरु अंदर है, उसनू अपने अंतःकरण विच खोज पड़ताल कर। हुण ये विस्तार है शब्द का भी, वो पड़तालिया पछाणिया माणिया किवें जावे, क्योंकि अलख है निरंजन है। ते फिर बचन आया कोई उसनू याद करदा आवाजा मारदा तुरे ते सही, जिवें बाणी कहंदी है कबीर केसो कूकीऐ ना सोईऐ आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। तू कूक बोल आवाजा मार, राम सिमर ये है तेरा काज है। तू प्रीतम नू जपना शुरू कर दे। ओ निरंजन ते अलख, ये दोनों अखर भी समझण वाले ने। निरंजन का भाव है भी कालक तो रहत, ते इत्थे कालक तो रहत क्यों वरते है? भाव ओ माया नाल नहीं मिलदा, वो पैसे नाल नहीं मिलदा, क्योंकि उसते असर ही कोई नहीं। बंदा सोचे भी मैं बहुते दमड़े दे दें किसी धार्मिक स्थान नू ते गुरु खुश हो जाएगा। हो सकता है लैण वाले खुश होण, लेकिन रब नहीं जे खुश होंदा। बाणी दा बचन है कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, क्योंकि निरंजन है, वो कालक तो रहता है, उसते माया दा कोई प्रभाव नहीं। अलख भी है, वो लखिया नहीं जाता, वो पछाणिया बाहरों देखिया नहीं जा सकता उपरी नजरां नाल। फिर अरदास बाबा जी जे एहो जे गुण ने फिर मिलेगा किवें? कहंदे आपे मेल आईए, वो आप ही किसी ते तरस कर दिता ते उसनूं मिल लैंदा है, आप मिलाउंदा है। ते मिलन दी जुगत भी उसने बनाई है। रोज बचन पढ़दियां मूल मंत्र विच गुर प्रसाद, गुरु दी कृपा दे द्वारा, गुरु दी रहमत नाल मिलदा है। हुण बाकी दे शब्द विच गुरु दी कृपा मेहरामत किवें वरतदी है, वो सारा विस्तार कीता। कहंदे हन पेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया। पेई अड़े पेके घर विच हर मनुख 4 दिन वास्ते आया है। 4 दिन आम एक साडा समाजिक बोला भी है कि बच्ची जमी कहंदे ने पराया धन है, ते गुरु ने बचन भी कहने सबना साहुर है वंजना सम्मुख लावण हार। इत्थे 4 दिन लई आए आ, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। बहुत सारे वचन ने इस पर थाए कि बंदा भावें अमीर है गरीब है, ये शब्द ते आया है उन्हां धनाड़ लोकां लई जेड़े अपने हुक्म चलाउंदे सन, जिसदा कीर्तन भी हुणे सरवण कीता ना, हुक्म कीए मन भावंदे। 4 दिन की गल है, ये 4 दिन की जिंदगी है। उस गल नूं समझाउंदे भी पेईड़ है दिन 4 है, हर हर लिख पाया। और ये गल रब वल्लों निश्चित की हुई है। अकाल पुरख नूं मिलण लई ये नुकता बड़ा जरूरी जे, चेता करियो। गुरु तेग बहादुर बापू जी दे वचन पढ़दे आ, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जदों पेके घर विच है ही 4 दिन लई, ते फिर चिंता किहड़ी गल दी करनी। समा पैंदा आंदा है, बच्ची दा आनंद कारज हुंदा, अपने सोहरे घर चली जाती है। यही जीव आत्मा वास्ते है। इस लोक विच मात लोक विच जीव आत्मा अपने पेके घर वांगू जिवें बच्ची रहिंदी है, इत्थे वसे हुआ है। और ये लेख रब ने पक्के पाए ने, हर हर लिख पाया। ये पक्का लेख है, इस विच कोई ऊणताई नहीं भी इत्थे कोई थिर रह सकता है। इत्थे ते राणा राओ ना को रह रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे थी। हर किसी ने इथों जाना है, हर किसी का सफर इथों पूरा होएगा ते अगली मंजिल वल नूं उसने इस मात लोक विच भोग के अपने जीवन नूं अगे टुर पैना है। ते बाबा जी अगे कृपा करदे ने, शोभावंती नारक है गुरमुख गुण गाया। ओ जीव स्त्री शोभा वाली है जिसने गुरु दे राही रब दे गुणां नूं गाया है।
हुण समझो, मात लोक विच रहना है ते गुरु धारण करके अपने जीवन नूं गुरमुखां वाला बनाउणा है, तां जाके किते शोभावंती नार है। जिवें भाई गुरदास जी ने एक बड़ी प्यारी गल कीती, वो कहंदे जैसे नहर कुवार कन्या लाडली कै मानीयत। आप सारे बैठे हैं घर गृहस्थी परिवारां वाले, घर विच बच्ची हुंदी है ना, ते बच्ची नूं लाडली कह के प्यार मिलता है, भी कोई गल नहीं, धी राणी है, कोई गल नहीं, बच्ची है, इन्हें ते तुर जाना है, कोई गल नहीं। ते भाई साहब कहते हैं इत्थे लाडली करके मन्निया जाएगा, पर व्याहे ससुराल जाए गुणन कै मानिया। सोरे घर जाके लाडली करके किसे नहीं पूछना, उत्थे तेरे गुणा की कदर होवेगी, उत्थे तेरे जीवन विच तू की खटिया, की कमाया है, की तैनू हुनर आंदा है। ते ये ते गल दुनियावी अध्यात्मकता दे विच भी यही गल है। जे साहुरे जाके सोरे घर जाके सुखी होना चाहना है ते गुरु धारण कर, ते गुरु कोलों सिक्ख्या प्राप्त कर। अध्यात्मकता वास्ते रब्बी घर पहुंचण तो पहला, अपने पति दे देश पहुंचण तो पहला तेरे कोल गुण होने चाहिए, उत्थे गुणा की कदर होवेगी। उत्थे कोई लाडली, कोई अमीरी, कोई जात पात ऊंची नीवी का कोई पुछ पड़ताल का सबजैक्ट ही नहीं होना, उत्थे ते पुछया जाना है। इसलिए बाबा जी कहते ने इहा घाट चलो घर लागा, आगे बसन सुहेला। इत्थे लाहा घट, अगे जे सौखे होना चाहना है, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह बैसन पाई है। अगर तू दरगाह प्रीतम दे घर शोभा नाल जाना चाहना है, ते गुरु दे हुक्म मुताबक इत्थे ही घाल कमाई कर। अगले बंद विच कहंदे पेवकड़े गुण संभलै, साहुरै वास पाया। जे पेके घर विच सुखां नूं संभाल ले, अगर गुणां नूं संभाल लिया ते सोहरे घर दा वास मिलदा है, प्रीतम दे घर विच इज्जत मिलदी है, निरंकार दे चरनां दा निवास मिलदा है। इत्थे पेवकड़े गुण संभल आया है, पेके घर विच गुणां दी संभाल। तेरे जीवन विच प्रीतम दे गुण होने चाहिए। वो किवें बनणगे? देखो, दूसरे मुल्क बच्चा भेजते हैं ना, सी साडा कोई बंदा बाहर जावे, वो वध तो वध कोशिश करदा भी मैं उत्थों दी भाषा सीखां, उत्थों दे सिस्टम नूं सीख के जावां, ताकि उत्थे जाके मैनूं कोई परेशानी ना होवे। पर गल्लां दुख वालियां ये ने कि असीं दुनियावी तल ते इत्थे सुख साधना विचों लभ रहे हैं। वो साधन नाल नहीं जाने, उत्थे नहीं चलने। किसी भी मुल्क जाना बंदा इतों करेंसी भी एक्सचेंज करदा, बदल लै भी ये नोट मेरे इंडियन करेंसी ने उत्थे नहीं चलना, मैं कित्थे भटकांगा। इस करके पहलों इंतजाम करदा है। ते गुरु पातशाह इसे करके कहंदे ने इत्थे रहिंदे आ, इस दुनिया विच रहिंदे आ, इस लोक विच रहिंदे आ, तू उस देश जोगा कुछ ते कर लै, उस घर जोगा कुछ ते कमा लै, कुछ ते हुनर अपने पल्ले विच पा लै, ताकि उत्थे जाके तैनूं बेइज्जत ना होना पवे। इसलिए सवाल जिहड़ा कीता गया उस दे उत्तर विच जवाब विच गल करदे ने पेवकड़े गुण संभलै, साहुरै वास पाया। गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया। फिर जिन्हां दे मन नूं अकाल पुरख वाहिगुरु प्यारा लगन लग पैंदा है ना, भा जांदा है, फिर वो गुरु दी शरण पै के गुरु दे हुक्म विच रह के सहज विच समा जांदे है। थोड़ा जा इतिहास दा एक पत्रा वाचीए। गुरु दे ज्ञान दी बरकत नाल मनुख किवें सहज विच आंदा है। सब तो पहला गुण है, आपां गुरबाणी नूं देखो सारियां ने मत्था टेकिया,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠੋ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਦੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੇਖੀ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੋ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਡੰਗ ਜੋਗਾ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। 19 ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦਾ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਰਾਤ ਜੋਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵਸਤੂ ਤੋਲਦਾ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੇਚਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੱਸ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। 1-2 ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਲ ਤੇ ਆਟਾ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
कहन लगे भाई साहब ये जेड़ा समान देन लगे जे ना, ये जेड़ा मेरे वास्ते तुसी अपनी दया विच पाई है, मैनू थोड़ी दया दी लोड़ नहीं, मैनू थोड़ी दया दी लोड़ नहीं, मैनू गुरु नानक दा उपदेश मिले है ते रब ते मैं भरोसा रखदा। जिन्नी क मेरी कमाई है, जितना क मैं समान रोज खड़ना, मैनू भार दा पता है, अज ये वाधू विच पाता है, जितनी क अपनी दया पाई जे विच कढ लो। मैनू थोड़ी दया नहीं चाहिए, मैं किसी बंदे दा दिता नहीं खांदा, मैं रब दा दिता खाना है। उसने मेहनत करन दी जुगत दी, 4 पैसे आए ने, राशन दे दिओ ते मैं चला। तुर गए राशन लेके। पिछे भाई लैना जी चिंता विच ने कि कितना कमाल दा जीवन है। अजे गुरु नानक नूं मेल नहीं सी होया, सोचते है कमाल है, ऐसा भी जीवन हो सकता है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा, ये जेड़ा बचन है कि गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया। जेड़े वाकई गुरमुख हुंदे ने, जेड़े सहज वाले हुंदे ने, जिन्हां दी दरगाह विच कदर पैंदी है, जेड़े इत्थे कमाई करदे वो कैसे हुंदे है। हुण भाई लैना जी मगर मगर तुर गए, छेती छेती दुकान वधा के कि मैं देखा ते सही कि ये थोड़ी जी दाल थोड़े जे आटे नाल घर दे जियां नूं किवें रोटी देणगे। ते जाके ना उन्हां दे घर तो बार-बार खड़े हो के खड़े ने, सुनदे कन्न ला के भी अंदर की गल हुंदी है। रोटी बनी, दाल बनी, अंदरों एक आवाज आंदी है एक बीबी दी, वो उच्ची आवाज मार के कहंदी है जी प्रशादा तैयार होया है, आओ 3 प्रशादे बने, आपां छकीए बैठ के। ते ये दोनों जी बैठे ने, टुटिया जा दरवाजा है, बाहर भाई लैना जी नजर मारते ने कि वो दोनों जी अजे बैठे। ते वो घर दी सुवाणी आखदी है, आ 2 प्रशादे तुसी छक लो, मैं एक छक लैनी आ। वो कहंदे जी क्यों, तुसी एक क्यों छकना है? कहन लगे इस घर विच 4-5 दिन तो प्रशादा नहीं बनिया, ना मैनू चूल्हा जगाना पिया, ना मैनू भांडे मांजने पे, ना मैं कोई काम कीता, मैं ते महारानी वांग रही हां। तुसी बल्कि बाहर थकदे सो, जांदे सो, कमकार लभदे सी। ठीक है रब ने काम नहीं दिता, पर तुसी मेहनत कीती, तुहानू रोटी दी ज्यादा लोड़ है, तुसी 2 छक लो, मैं एक छक लिया। जीवन वेखो, इस दुनिया विच सिख दा किरदार कैसा होना चाहिए। ते अजे ये दोवें जने गल्लां ही कर रहे सन, एक बंदा आया ते बूआ खड़का के कहंदा बड़ी भुख लगी है, रोटी खवाओ, प्रशादा छकाओ। ये दोनों जी खुश हो गए, ये दोनों उठे, थाल रखिया, एक प्रशादा ते जो दाल सी उन्होंने पाके दिती, नाल खड़े हो गए हाथ जोड़ के, कहंदे सच्चे पातशाह बाबा नानक जी आप जी दा कोटान कोट शुक्र है, तुसी बड़ा तरस कीता है। अज मैनू अपनी जिंदगी विच सारे कर्म जेड़े तुसी हुक्म कीते है वो कमाण दा सुभाग मिलिया। मैं किरत भी कर आया, मैं नाम भी जपिया है, ते मैं हुण वंड के भी छकण लगा। ते ओ जिहड़ा भुखा बंदा सी ना, एक होर बेनती करदे आ इत्थे, जिहड़े भुखे है ना वो किसी दूसरे दी भुख नूं समझदे है। रजिया बंदा भुख नहीं जे समझिया करदा। आपो अपने घरां वल नजर मार के वेख लो, साडे घर दे डस्टबिन विच किसी दे ब्रैड पिया होएगा जी, एक्सपायर हो गया, ये कई दिन दा पिया जी, ये दाल प्रशादा मैं नहीं खाना, वो सुट दिने आ। पर उन्होंने पुछ के वेख्यो जिहड़े उस डस्टबिन विचों कढ के छकदे आ कि रोटी दी कदर की हुंदी है, भुख दी दा दर्द की हुंदा है। बंदा अज ना किते छिड़किया पिया अपने सच्चे मार्ग तो। खैर उसनूं एक प्रशादा दिता, छकिया, ते वो भी सोचदा भी सामने प्लेट विच 2 प्रशादे है, ते एक एक खा लेणगे, मैं एक छक लेना। एक छकण तो बाद उठन लगे ते भाई सिंह जी ने चक के दूजा भी रख दिता, कहंदे जी खोर छक लो। हुण मन विच आया भी दूजा ते छक लेना, हुण तीजा नहीं जे मैं लेना। ते उन्होंने छेती नाल प्रशादा छकिया ते प्लेट चक के पासे रखी, कहंदे भी गुरमुखो तुहाडा बड़ा शुक्र है, तुसी मैनू भुखे नूं रजाया है, रब तुहाडा भला करे, जिसनूं मनदे हो तुहाडे ते रहमतां करे। ये बोल दो बाहर चला गया। इन्हां दोनों जियां ने ओ एक प्रशादा अद्धा अद्धा वंड के छकिया। तां भाई लैना जी आ गए अंदर ते कहंदे प्यारिया, ये सबर, ये धीरज, ये संतोख कित्थों लिया है?
कहंदे गुरु नानक तो लिया। ये मैनू गुरु नानक दे कलाम ने, उपदेश ने संतोख दिता है। ते मैं बेनती करा, आपां मत्था टेकदे हां गुरु नानक नूं रोज। गुरु ग्रंथ साहिब विच किसदी जोत है? 10 पातशाहियां दी जोत है ना। पर कमाल यह है कि जपजी भी पढ़ लेने पर संतोख नहीं आया, क्योंकि सानू असल विच सुख साधना चो लैण दी आदत पै गई। गुरु दे उपदेश चों सुख नहीं असी लोचदे, ते जदों तक वो सुख नहीं मिलेगा उदों तक सानू उस मालिक दे घर विच शोभा नहीं मिल सकती। ये अज दा ये विषय देखो, गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन भाया। ते इसलिए अपने मन नूं संबोधन करो। आनंद साहब पढ़िया जाना, हुण नितनेम विच भी पढ़दे आ, मन नूं संबोधन करदे आ ना, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो। तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, तू ये आप मन नूं समझाना है, क्योंकि गुरु अमरदास साहब समझाने की जुगत दे रहे हैं। अज इत्थे भी गुरु अमरदास साहब ही बोल रहे हैं। असी खाने आ, मेरा मन कीता मैं खा लिया, मेरा मन कीता मैं पा लिया, मेरा मन कीता मैं घूमन चला गया, हर गल मन दी मनदे आ। ते गुरु बाबा जी कहते ओ भलिया सारी जिंदगी मन दी मनदा है, किते गुरु ग्रंथ साहब दी गोद विच आके अपने मन नूं इक्को गल मना लै, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल। मैं सदा तेरी गल मन्नी, तू एक बारी गुरु को लाके मेरी ए बेनती सुनते गुरु दा उपदेश मन ले। गुरु दा उपदेश की है? कहंदे आपे ही प्रभ दे मत, मन दी नहीं मैं सुननी, मैनू मेरा गुरु मत बख्शदा है। हर नाम ते आई है, ते जिन्हां नू मत दिंदा ओही नाम जपदे है। फिर इसलिए हुक्म है ना गुरु का, गुर की मत तू लेहे ए आने, भगत बिना बहुत डूबे स्याने। बिना गुरु दी मत तो रस्ता नहीं जे सच दा लभदा। इस करके आपे ही प्रभ देह मत, हर नाम ते आई है, वड भागी सतगुर मिलै, मुख अमृत पाई है। जेड़ा सच्चे रब नाल जोड़दा है वो गुरु है। ते गुरु किस नूं मिलदा है? वडभागियां नूं। आप जी जुड़े हो ना गुरु ग्रंथ साहब कोल, मत्था टेकिया ना सच्चे पातशाह महाराज नूं। ये तो एक बाहरला, ते गुरु मिलन दा तरीका है जो गुर कहे सोई भल मानो। गुरु नूं मिलन दा ढंग है अपने गुर मिल रही है, अमृत गई है। हुण मैं सारा दिन गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बैठा, मैं सारा दिन चोर साहब की सेवा करा, सारा दिन चोर बरदारी करन तो बाद शामां नूं जाके मैं मान दियां हंकार दियां ते ओ गल्लां ते ओ कर्म करा जिहड़े गुरु नूं भाउंदे कोई नहीं। ते खिमा करियो, मेरा कीता होया किते प्रवान नहीं होना। गुरु नूं मनण दा, गुरु दे हुकम विच जुड़न दा तरीका है जिहड़ा गुरु दे बोलां नूं कमा जांदा है। नहीं ते पिरथी चंद जी भी नाल ही रहिंदे है, ते गुरु अर्जन साहब भी नाल ही रहिंदे है। गुरु रामदास साहब पातशाह दी उस परिवार विच, उस घर विच दोनों ही पुत्र ने, पर एक किथे है ते एक किथे है। एक ने गुरु की गल मन्नी ते एक ने गुरु नूं मनाना चाहया। एक कहंदा मेरी मनो जी, जे मैं ना होवां ते संगत नूं कौन देखेगा। बस यही कारण है कि सानू गुरु की प्राप्ति सही ढंग विच नहीं हो पा रही। असी बाहरों गुरु को लाने आ, बाहरों भी चले जाने आ। खिमा करियो, जदों तक अंदर रब नहीं, जदों तक उसका प्यार नहीं, उदों तक कुछ नहीं जे मिलदा। दो तरीके ने रब दे रस्ते ते जीवन नूं मनुख अपने नूं दुनियावी रूप भी सवारदा है ते अध्यात्मकता विच भी सवारदा है। जिथे केवल मत चलदी है ना साडी, उत्थे चलीए होणगे। जिथे मत चलदी है उत्थे दिखावे दे कर्म होणगे। जिथे मन दी प्रीत गुरु नाल पएगी, क्योंकि रब ना दिल दा मन दा विषय बन जाएगा। फिर दिमाग विच चतुराइयां ने, दिमाग विच सियाणपां ने,
ते मन भोला है। इस करके अपने मन नू गुरु को लियाउणा है। मन कर कबू ना हर गुण गायो, मन करके नहीं ना जुड़िया, कारण ते यह है। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चे, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। अपने मन नू गुरु चरना च टिकाउणा है, फिर बरकत होवेगी। होमै दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाई है। फिर होमै मिट जाएगी, क्योंकि पता लग जाएगा करता करीम सोई, राजक रहीम ओई, दूसर ना भेद कोई, भूल ब्रह्म मानवो। सहज ताई आएगा ना, दुबदा ताई नसेगी। अज ते दुबदा है कि मैं कीता है, असी करदे हां, साडे तो बिना किवें हो सकदा है। पर कदे मोहम्मद इकबाल की गल मैं बड़ी बारी इत्थों भी सांझी की है। मोहम्मद इकबाल सूफियाना अंदाज विच एक वार्तक गल लिखते हैं बड़े प्यार नाल। वो कहंदे ने एक बंदा खुदा नाल लड़ाई पिया करता है। खुदा नू कहंदा है कि मैनू बड़ा दुख हुंदा है कि लोग तैनू सिजदे करदे है, तेरा नाम जपदे है, ते दुख इस गल दा हुंदा भी मैं भी बड़ा कुछ करदा, मैनू नहीं जपदे। ते आकाशवाणी हो गई, इल्हाम होया कि जे तेरे मन विच ते मेरे शरीके दी गल है ते मैनू दस भी तू की करदा है। ते बंदा गिनाउण लग पिया, कहंदा रब जी तुसी पहाड़ बनाए, मैं पहाड़ां विचों दी रस्ते लंघा ले। तू दरिया बनाए, मैं दरियावां ते सियाणप वरती पुल बना के किनारे नेड़े कर ले। तू पत्थर बनाया, मैं विचों शीशा कढ लिया। तू लक्कड़ पेड़ बनाए, मैं सोना फर्नीचर बनाया। फिर रब जी हंस के कहंदे वाकई भी जो तू बोल रहे हैं, जो तेरी सोच है वाकई बहुत अच्छी है, पर मैं तेनू पूछना चाहना, जे पहाड़ ना हुंदे, जे पत्थर ना हुंदा, जे लक्कड़ ना हुंदी, जे दरिया ना हुंदे, तू फिर की करदा? चल जे फिर भी कोई अहंकार दी गल है ते मैनू सवाल दा जवाब दे, जे मैं तेनू ना बनांदा फिर तू की करदा? सानू रब ने बनाया है, पढ़ी जा रहे हैं। रमैया के गुंचेत परानी, कवन मूलते कवन दिष्टानी, जिंतु साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। पर हो मैं फिर खड़ी है, मैं कीता है, असी करते हैं, साडे तो बिना नहीं होना। फिर रब किवें मिलेगा? प्रीतम है पर नहीं मिल रहा, नेड़े है पर नहीं नजर आ रहा। सब आपे आप वरतदा, आपे नाए लाई है। पर जिन्हां ते वो तरस कर दिंदा, हुक्म मनण वालियां ते उन्हां नूं अपनी नाल जोड़ लैंदा, आप ही प्रगट हो जांदा है। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान एआणे, जेड़े मनमुख ने वो अहंकार विच ने, गर्भ विच ने, उन्हां नूं रब नहीं मिलदा, क्योंकि वो गुरु दे नेड़े नहीं जांदे, उन्हां कोल ज्ञान नहीं है। सतगुर सेवा ना कर हैं फिर पछताने, वो गुरु दी सेवा नहीं करते, गुरु दे हुक्म विच नहीं चलते, उन्हां दी जिंदगी च मुड़ मुड़ पछतावा रहिंदा है। गर्भ जोनी वास पाएंदे, गर्भे गल जाने, वो गर्भ जून विच ही रहिंदे ने। गर्भ जून की आवागमन बनिया रहिंदा है, उन्हां दा जन्म हुंदा है, उन्हां दी फिर मौत हो जाती है, वो जूना बदली जाते ने। वो फिर रब विच भेद नहीं। भेद कौन है? गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले। परवान कौन है? जिन्हां ने सेविया है, सिमरिया है, वो कबूल पै गए, वो अभेद हो गए। जिन्हां ने नाम ध्याया, हुक्म कमाया, पातशाह जी कहंदे ने मेरे करते एवें भावदा मनमुख परमाने। मेरे रब जी नूं यही रीत भाउंदी है कि जेड़े मनमुख ने वो जन्म मरण विच ही पए रहणगे, क्योंकि असंख चोर हराम खोर भी ने, असंख गलबड़ हत्या कमाई, असंख पापी पाप कर जाए, वो इस रस्ते पै जांदे। वो फिर नाम दे मार्ग ते नहीं चलते, जिस कारण उन्हां दी जिंदगी नूं खुआरी मिलदी। हर बिन बैल बिरानी हुई है, जूना दा चक्कर है, रब दी इबादत तो बिना खुआर। इस करके मेरा हर प्रभ लेख लिखाया, धुर मस्तक पूरा। मेरे करते ने दरगाह तो एक सच्चा लेख जीवां दे उत्ते पाया है। वो लेख है जेड़े गुरमुख ने, वो अभेद होणगे। ये पूरा लेख है, ये पूर्ण अटल सच्चाई भाव लिखी है। हर हर नाम ध्याया,
भेटिया गुरसूरा। जिन्हां नूं पूरा गुरु सूरमा गुरु मिलिया वो हरि दा जाप करते ने, वो फिर परमेश्वर विच भी अभेद हुंदे ने, क्योंकि गुरु मिलन दी देर है। जिन्हां नूं गुरु मिलदा है, शब्द पढ़दे हैं ना, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं मिलाण वाला बसीठ दा आखरी अर्थ विचोला, वकील। हरी दरगाह दा विचोला, रब दे घर दा विचोला कौन है? सतगुरु। हर नामो मंत्र दिड़ाएंदा कट्टे होमै रोग, वो वाहिगुरु दा नाम जपाउंदे ने ते होमै दे रोग कटदे है। नानक सतगुर तिन्हां मिलाया जिन्हां धुरे पया संजोग। कहंदे हे नानक सच्चा सतगुरु ते उन्हां नूं ही मिलदा है जिन्हां नूं रब ने मस्तक पूरा लेख धुरों पाया है, वो गुरु को लांदे है। आखिरी पंक्तियां ने, मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदप बीरा। जो गुरमुख हो गए, जेड़े गुरु दे हुक्म विच आ गए, सतगुरु कहंदे ने उन्हां दी अवस्था है। वो कहंदे मेरा पिता भी, मेरी माता भी, मेरा बंदप रिश्तेदार, मेरा वीर, सब कुछ वाहिगुरु ते उसदा नाम है। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदप बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। कीरा शब्द का अर्थ है कीड़ा, ते कीड़े का भाव इत्थे लिया निमाणा, बहुत आजिज, बहुत नीवा, बहुत निक्का, बहुत छोटा। कहते नानक गरीब, नानक बहुत छोटे पद्धर ते खड़दा है, माड़ा है, पर मालिका मैनू भरोसा है कि तू मिला लेना है, अपने नाल बख्श लेना है ते जोड़ लेना है, कृपा कर। एहो जी अरदास करिए निमाणे होके। होए निमाना ढह पवे दरगाह मान, निमाणो पावे, वो अवस्था बाबा जी दे रहे ने। सो सतगुरु कृपा करन, मेहरामत करन साडे ते। जो अज दा ये पावन शब्द है, जिस दा केंद्री भाव कि ससुरे पई है पिर वसै कौ कितबिद पाई है, वो वस रिया नाल मिलेगा किवें? गुरु वाले बनो, अमृत छको, नितनेमी होवो, अमृत बाणी दा पाठ सहज पाठ करो, आप बाणी नूं समझण दी कोशिश करो, और जितना गुरु नाल प्यार बनता जाएगा तिवें तिवें उसकी गलवकड़ी खुलेगी ते सानू अपने नाल जोड़ेगा। और जिहड़ा गुरु दी गोद आया वो परवान हो जाता है। सतगुरु कृपा करन, मेरामत करन, साडा जन्म साडा जीवन ताही सकारत है। इतने बचन परवान करने, होइयां बेअंत भुलां ना चितारनियां। फतेह दी सांझ